हैप्पी जर्नी। योगा करते रहो अच्छे से और बहुत आगे तक बढ़ो। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग कि वो वेलनेस सेंटर है जिसमें उनका मुद्दा ये है कि मोटिव बेसिकली ये है कि उनको हेल्दी लिविंग रखनी है। एंड आई थिंक आजकल जितने एक्टर्स हैं यहाँ पर, आई थिंक दे विल ऑल एग्री that we all are on a diet and we all have joined gyms which are 24/7 because हमारे शेड्यूल के हिसाब से we really can't not go to the gym, तो हम वो ऐसे वाले gyms ज्वाइन करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे भी 24/7 बना दो ताकि हम योगा के लिए भी यहाँ पर आ सके। एंड yes, so I think Priyanka can also say a lot because वो बहुत सारा योगा करती है, वो बहुत ज़्यादा fit है। And I just want to wish them all the very best and good luck to you guys. May you prosper and do really, really well. Thank you. I want to wish Adessa, first of all, very congratulations for this new initiative and everything. It's very important for each one of us to live a healthy life and do yoga and work out whatever suits you. So I think it's a fabulous thing that you all are doing and I wish you all the best. And Shiva sir, yeah, one thing for you. So, what according to you is the health mantra? What is your health mantra? Health mantra: do yoga without paying money. Okay. Actors always believe in getting a lot of benefits without paying off. So please, when you start this wellness, please count me on. All of the people out here, and please don't ask for money. Okay, so there 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people joining together. तो discount तो होना ही चाहिए. Definitely. Really good to see you. Tell us your connectivity with yoga. There was a time actually when I used to do a lot of yoga and I had actually gotten addicted to it. मैं actually कभी gym के लिए भी सुबह उठी नहीं हूँ, पर योगा के लिए मेरा instructor आता था घर पर at 8 o'clock in the morning and I used to literally wake up at 7 because मैं खाली पेट तो कुछ नहीं कर सकती, तो I used to 7 o'clock wake up, eat a little bit and then wait for my yoga teacher to come and उसके बाद I used to do yoga. तो एक कुछ फेज था in my life about 3 months where I used to do vigorous yoga, but उसके बाद फिर वो शूटिंग ऐसी हमारी शुरू हो जाती है, you guys know यार how we shoot, तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता है. बट देन वही होता है कि फिर like I was saying 24/7 जो gyms होते हैं this that, तो फिर वो हम ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें अगर योगा क्लासेस होती हैं तो then we can do all of that, but not really. तो वो एक फेज था when I used to do yoga and that's about it, but I used to really enjoy it. What is your fitness mantra? My fitness mantra is eat healthy, which I have started doing now. Otherwise मैं total junk food खाती थी, but अब जाके मैं थोड़ा सा consciously I've made an effort कि मैं थोड़ा सा healthy खाऊं, like salads and stuff. So and obviously drink a lot of water is what I feel is my mantra. What is about the new start? People have started a yoga, they've taken a new initiative. What's Yes. your take on that? I really like their motive. The whole mantra for them is healthy living, and I think that is the most important in today's times because everybody is into आजकल मैं मतलब Instagram पे भी देखती हूँ तो everybody is just posting their videos जिसमें वो लोग workout कर रहे हैं and somebody is doing yoga and somebody is doing Pilates and तो it's actually motivating. It's actually very it's like an inspiration कि आप उनको देखो and you feel like doing it. So I think a wellness center like this will always help because there are a lot of people who love yoga, तो वो यहाँ पर आएंगे and for them to have a good healthy life is all that they need anyway. What happening on profession? I'm doing a show on colors which is called Savitri Devi College and Hospital.
and I'm doing a cameo in Ganga, which is on NTV. So right now I'm just doing that. Thank you so much. बोलो सर, क्या कहना चाहेंगे? योगा कितना आज के दौर में महत्वपूर्ण है और आप इसे फॉलो करते हैं? योगा की बात की जाए तो बोल दे। योगा के जो बहुत ही नामी ग्रामी गुरु जो हैं रामदेव महाराज जी, उनको तो सभी फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी फॉलो कर लेते हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी का मन और तन दोनों शांत होता है, बहुत ही तंदुरुस्त रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। योगा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि योगा से ही सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइजेज निकली सारी योगा से निकली है। एक योगा से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो उम्र बढ़ते बढ़ते आदमी का रिदम जो होता है, श्वास का रिदम जो होता है वो बदल जाता है। तो वो श्वास का रिदम जो है वो वापस लाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो योगा से होता है, जिसकी वजह से आदमी को तंदुरुस्त रहने में हेल्प करता है। योगा इज़ अल्टीमेट। योगा से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है। वो कितने सालों से चला वो पूरा उसका योगा का हर चीज़ चला आ रहा है। वो यहीं से ईजाद हुई थी, वर्ल्ड में चली, चाइनीज़ लोगों ने उन्होंने अपनाया। तो आई थिंक योगा से आज सप्पलनेस बनती है, बॉडी की हर बीमारियां गायब होती है। मुझे नहीं लगता कि रामदेव बाबा की कोई बीमारी होती होगी, क्योंकि वो हर बॉडी हर पार्ट इतने योगा में इस्तेमाल होता है कि बीमारी का कोई रास्ता ही नहीं पड़ता। तो आई थिंक कैंसर सेल्स वगैरह जो भी आप डायबिटीज़ होती है या ब्लड प्रेशर जो भी है, वो बिकॉज एक तो इरेगुलर खाना, इरेगुलर स्लीप और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ योगा दूर करती है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि जैसे एडिसा वेलनेस जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस खुले योगा के लिए, तो आदमी को दो कदम चल के योगा क्लासेस मिलना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत आलसी हो गए हैं। अरे कहाँ जाएंगे आधा किलोमीटर नहीं चल सकते। इसलिए दो डोर के बाद, यानी दो घर के बाद, दो बिल्डिंग के बाद ऐसे वेलनेस सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे योगा सिखाया जाए। सर, ये भी कहना है आज प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू जी का निधन हुआ, बहुत दुख की बात है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए? लॉस तो हर आर्टिस्ट के जाने पे होना ही है इंडस्ट्री को, चाहे रीमा लागू जी हों, चाहे छोटे में छोटा एक्टर हो। लेकिन बात ऐसी है कि रीमा लागू जी बहुत ही फेमस, बहुत ही नामचीन एक्ट्रेस थी, तो उनको लोग ज़्यादा याद करते हैं। वैसे काफ़ी सारे हमारे और भी एक्ट्रेस जो हैं इससे पहले जा चुके हैं, तो उनको याद ज़्यादा रखते नहीं, बिकॉज उनको वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी वक्त हो गया बाहर हो चुके होते हैं। इसकी वजह से तो मेरा ये कहना है कि लॉस तो हर आर्टिस्ट के जाने से होता है इंडस्ट्री में। शिवा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बात सही कहा आर्टिन है कि लॉस तो हर एक्टर क्या हर इंसान के जाने के बाद होता है, सब किसी ना किसी की ज़िंदगी में। और रीमा जी तो बहुत नामचीन एक्ट्रेस थी और बहुत ही अच्छी इंसान थी। मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया उनके साथ, एंड शी वाज अ वंडरफुल लेडी एंड अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। बट यही कहते हैं ना कि इंसान जब वक्त आता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, योगा भी नहीं रोक सकता। तो बस यही है कि वक्त है तो आदमी को जाना है। बट इट्स अ बिग लॉस टू द इंडस्ट्री एंड डिसअपॉइंटमेंट इन पीपल्स हार्ट कि इतनी यंग एज में वो नहीं जानी चाहिए थी। 59 इज़ नॉट एन एज टू डाई। खैर, बट गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। So Adesa is nothing new. It's going back to basics. It's just that we've come up with teaching traditional method with a modern approach. So this is the first time a yoga retreat will have a pop-up venue. So how we have pop-up restaurant, pop-up this is the first time that a yoga retreat will have different location every time. So if I am a participant, I can go to a Lonavala workshop, I can go to a Northeast workshop, or I can go ahead and have a South experience. So this is the humble approach by a person who's devoted his life for 20 years in yoga. So that's about it. And we would want everyone to experience this basics of life that we've lost. So it's not only about detox from certain habits, but it's also about technology detox. So this is what Adesa is all about. That's it. Thank you. Okay, thank you. Are you good? Actually, that's my. Oh, hi. How are you? Fine, thank you. Hello. रोल क्या करने से रोल
योगा मेरे ख्याल से इस वक्त और आज के दिन में इतना ही ज़रूरी है जितना सारी नेसेसिटीज़ जैसे पानी, जिस तरह से हवा, सांस लेना, आई थिंक योगा उतना ही ज़रूरी है बिकॉज इतना स्ट्रेस है लाइफ में, लोगों की इतनी भागा दौड़ी है, स्पेशली बॉम्बे शहर में जहाँ पर हर वक्त मेरे ख्याल से वी आर ऑलमोस्ट लिविंग 24/7, देयर इज़ नो स्टॉपिंग एनीथिंग. So yoga help us to make sure our immune system is strong and we focus on life. So I think like he said, हमारी जो आज की लाइफ है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट फील्ड से हो, स्ट्रेस जो है वो सबकी लाइफ में है. सो आई थिंक योगा से अगर आप अपना दिन शुरू करते हैं, जब भी करते हैं, उससे आपका स्ट्रेस रिलीव होता है. आई थिंक उससे बेटर स्टार्ट आपके डे का नहीं हो सकता है. एंड हमारे जितने भी एल्डरली थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो हमेशा इतने हेल्दी इसलिए रहते थे क्योंकि वो योगा करते थे. सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में हम लोग वापस स्टार्ट करें. सो हम लोग आई थिंक वी हैव ग्रोन सीइंग हर, और इनकी सबसे मेरी फेवरेट फिल्म मैंने प्यार किया, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म विच आई रिमेंबर. एंड आई वुड जस्ट से दैट वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड यू नो दिल से रेस्ट इन पीस. एंड जहाँ पर भी आप हैं खुश रहें, और यू नो इसी तरीके से जिस तरीके से आपने हमेशा यू नो एज एन एक्टर जन्म लिया, आप अगले जन्म में भी एज एन एक्टर जन्म लें और अच्छे काम करें साथ में के. यार इसमें मतलब अभी हम लोग कुछ भी बोल दें बहुत कम होगा, बट मेरा डे स्टार्ट हुआ था उस खबर से. जब मैं उठा था तो मैंने वो न्यूज़ पढ़ी और बहुत ही दिल को दुख पहुंचा था. वन ऑफ योर फिल्म्स इफ़ आई हैव टू से हम आपके हैं कौन, यू नो लोकनाथ जी के साथ उनका. बट यू नो 59 की एज में यू नो इट्स टू अर्ली फॉर एनी वन टू लीव. एंड रीमा लागू जी बीइंग सच अ ग्रेट एंड सच अ सीनियर एक्ट्रेस, बहुत ही बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं. एंड मेश और सोल रेस्ट इन पीस, हमारे दिल से यही तमन्ना रहेगी. जहाँ भी उनका यू नो वो हैं और खुश रहें. दैट्स अबाउट इट.